Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. In this video, friends, we are going to cover a very important topic, that is introduction and importance of social infrastructure. Friends, would like to inform you, in my previous video I have already deeply uploaded about the infrastructure and its two types, that is nothing but physical infrastructure and social infrastructure. Definitely again in this video we are going to cover the same topic but in a short way. Let's learn. And definitely in this video we are going to deeply discuss about the importance of social infrastructure. So now let's learn, let's do a quick revision of our previous video. That is nothing but, as you can see on my screen, I have discussed with you people that infrastructure is broadly divided into two parts, that is physical infrastructure and social infrastructure. Now what do you mean by the physical infrastructure? So I can say that it includes the transportation activities and the communication activities and other activities which are ultimately supports the productive activity of the society. It means society's productions activity and the manufacturing activity. Ultimately, these activities are required effective communication as well as effective transportation facilities. So these are the physical infrastructure which ultimately supports our productive activity, and it is nothing but what we call transportations and the communication and energy and the water. And another one is social infrastructure. So we can say that the social infrastructures are nothing but it includes education facilities which are provided by the government, social activities and social facilities which is called as healthcare services, and the last we can say that the welfare and the family welfare, which ultimately helps to provide a good standard of living, promotes higher standard of living and all these things. So basically we have completed these 2 points in our previous video. So now let's proceed to the very important question of this chapter, that is importance of सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दोस्तों हमने दोनों चीज़ें सीख ली हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम देखेंगे सो उसके ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, वाटर एंड एनर्जी पावर सप्लाई से रिलेट्स करता है. एंड उसी के कंपैरेटिवली में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर पे बिलीव करता है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्कआउट करता है और बेसिकली ये वर्कआउट करती है हमारी गवर्नमेंट. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ here we need to discuss about the importance of social infrastructure. So there are total, I can say that total we have 8 pointers which we need to deal with, all the 8 pointers one by one. So now let's start. Very first point you can see on my screen, that is human development. Yes, exactly, human development is a very important cheese, very important thing we can say, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नथिंग बट एंड इट इज़ नथिंग बट यहाँ पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक पार्ट है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंट है कि इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. लेकिन जो इंसान है इनकी डेवलपमेंट होती है. कैसे डेवलपमेंट होती है? सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, इनका लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव होता है इफ़ द पीपल आर गेटिंग इफेक्टिव एजुकेशन, healthcare and the family welfare services. Okay, now human development can be counted with the help of HDI index, is nothing but what we call human development index. Okay, and ये जो human development index है वो developed किया गया, it is developed by UNDP. Now UNDP is the UNDP का full form आप लिख कर रख सकते हैं. Okay, so basically United Nation Development Programs. So UNDP refers to United Nation Development Programs we can say. Okay, so ultimately मैंने आपको ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंपॉर्टेंस है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, ये इम्प्रूव करता है. और ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट किया जाता है
HDI के द्वारा, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड ये जो इंडेक्स है इट वाज डेवलप्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, सो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ. दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ. सो एग्जैक्टली जब अगर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम एंड फैमिली वेलफेयर सिस्टम अल्टीमेटली डेवलप्स द ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप्स द ह्यूमन. देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट होता है जब अगर कोई भी या फिर हमारा सोसाइटी प्रॉपरली एडुकेटेड है, प्रॉपरली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है. सो डेफिनेटली अल्टीमेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने मिलेगा इन द प्रोडक्टिव फैक्टर. जो भी आपका प्रोडक्टिव फैक्टर है वो अल्टीमेटली क्या होएगा, इंक्रीज होगा. उस पर आपको क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट. मतलब प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं just because of the education and the healthcare facilities, क्योंकि workforce can make better utilization of resources and then they can contribute into the economic growth. एजुकेशन स्किल्स है, अगर कोई बंदा है जो प्रॉपरली एजुकेटेड है, स्किल्स है, उसके पास स्किल्ड बंदा है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, वो अपने स्किल्ड, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड दूसरा, अगर हेल्थ केयर प्रॉपर होगा सो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई स्वस्थ है, हर कोई हेल्दी है. सो दे कैन यूज़ देयर माइंड, दे कैन डू मोर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्टिव सेक्टर बिकॉज ऑफ द हेल्दीनेस ऑफ देयर हेल्थ. ठीक है, सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी अल्टीमेटली. देन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़. नाउ व्हाट इट दिस मीन? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है? इट इज़ अ बेनिफिट एंजॉयड बाय अ थर्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस. मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फैमिली सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है ना थ्रू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है. बेसिकली ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, so these are the positive externalities because these are the third party, but ultimately it helps to the social, or it helps to provide social infrastructure. Now the next one is quality of life. Definitely again would like to say the same thing again. If education plays a crucial role in the improvement of quality of human capital, जो भी ह्यूमन रिसोर्स, वॉट एवर द ह्यूमन रिसोर्स वी हैव, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स आर नथिंग बट द मैन पावर, वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर इन द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज. ओके, सो इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा इफ दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे आर एंड या फिर गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है इन द हेल्थ. सो इससे क्या आएगा, डेथ रेट जो हो गई, इंजरीज हो गई, डिसीजेज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होगी, डिक्रीज होगी इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ मोर मनी ऑन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई कैन अल्टीमेटली से दैट ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ओके, गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे अगर खर्चा करेगी सो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जिसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा बिकॉज डिसीजेज, डेथ रेट है ना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. सो अभी मैंने बताया कि अगर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्रॉपरली गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रही है, हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे, सो इसकी वजह से प्रोडक्टिव भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिवनेस भी बढ़ेगा. Basically, it ultimately help us to increase the productive efficiency. Efficiency, whatever the cost of output you people are generating are nothing but called efficiency. So production का जो output है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करेगा अगर गवर्नमेंट इन जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, यानी कि एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर पे. ठीक है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. एग्जैक्टली, अगर प्रॉपरली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जा रही है या प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जा रही है लोगों को, सो लोग जो है स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे, सो ये अच्छी तरीके से इफेक्टिवली रिसोर्स को यूज़ करना जान जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ द एजुकेशन पीपल कैन यूज़ better resources of utilization, better resource utilization. Then we have higher aspirations. Aspirations are nothing but what we call desires. With the improved education, people aspire for better standard of living.
if the one person, person A and person A is well educated and person B is not well educated, so person B will not take care about his or her, or his, we can say that, the standard of living and quality of life. But definitely person A is well educated, he is well skilled and motivated person, so definitely he will try to improve his standard of living. He will increase his desires, his aspirations. So हायर एस्पिरेशंस किस वजह से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है आपके एजुकेशन पे और आपके हेल्थ केयर पे. देन वी हैव सोशल चेंजेस. अगर एजुकेशन, बेसिकली जो एजुकेशन है इज एक्सपेक्टेड टू एनलाइटन पीपल्स माइंड्स, एनलाइट करता है लोगों का जो माइंड है उसको बिल्डअप करता है, इसको इस अच्छी तरीके से बिल्ड करता है कि एजुकेशन होना चाहिए, स्प्रेडेड होना चाहिए हर जगह से, बिकॉज इट विल डेफिनेटली ब्रिंग द चेंजेस इन द सोशल एंड द सोसाइटी. Okay, or we can say it will increase the relationship between in the relationship between society and the people. So definitely it will helps to reduce the discrimination among the society. It promotes harmony, peace, and it reduces the social conflicts. Okay, so we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulties, so you can comment on my YouTube channel. That's all enough for today, friends. Bye bye, have a nice day, take care. Thank you for watching, keep supporting.